Last question that we have, it is about planning was seen as a powerful instrument that could be used to remove regional inequality. So planning is something which became important from the Indian struggle itself. 1938 we see the creation of planning committee, and this planning committee under Jawaharlal Nehru, and later on we had already seen the Soviet models from 1927-28 onwards. Soviet Union has started the process of 5-year plans. तो वो सारी चीज़ें हम देख चुके थे. And when Jawaharlal Nehru he became the major leader of India by becoming the prime minister, planning commission was formed and the system of 5-year plan was started. And this planning was required to remove regional inequality because critical infrastructure was missing in many of the areas of India, and that's why this was thought of कि भाई इससे करेंगे. फाइनेंस कमीशन से उनको ग्रांट्स दिलाए, ट्राइबल ऑटोनॉमी दिया, 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल, उनके लिए स्पेसिफिक ग्रांट्स यहाँ पे प्रोवाइड करना शुरू किया. The 5-year plans, they focus on specific areas. First mostly towards agriculture, second focus towards your industrial setup, and they were regional planning के हिसाब से भी they were also able to form up with multi-purpose valley projects. So they were also open in various of these states. But the problem was the growth rate. The growth rate was not good enough. Okay, so trickle down effect never happened. Displacement happened of various tribal areas, so that created a kind of long-term grievance for all of them. Centralized planning, implementation bottlenecks, corruption, very big issue. And as said by Rajiv Gandhi previously, if we spend 1 rupee, only 15 paisa is reaching the real beneficiary. So 85% is just going out. And because of all these factors, regional inequality could not be reduced to an extent. Okay, and in some cases regional inequality could not be reduced because development, okay, it could not happen because of security issues like rise of Naxalism, and all those issues were also there. But anyway, the area has continued, and even today we are trying to make sure कि regionalism को कम करने के लिए we have to ensure development in every part of India. तो उसके लिए specific grants वगैरह भी दिए जाते हैं, tax breaks भी दिए जाते हैं, all those things are done. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन थोड़े सिंपल रहते हैं, नो हिस्टोरियोग्राफी रिक्वायरमेंट ऐसा, तो इसको आप टारगेट कर सकते हो. सिर्फ बिपिन चंद्रा वाले में से कुछ चैप्टर्स काम के वही पढ़ना, ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत इसमें नहीं है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द फाइन प्रिंट्स. इन पीपीटीज़ को यूज़ करो, इंट्रोडक्शन देखो, कंक्लूजन देखो, एटलीस्ट एक रिविजन का अपना एक चार्ट बना लो, और बाद में जब प्रीलिम्स ख़त्म होता है तो इनको अच्छे से एक बार देख लेना. एक बार अच्छे से इसको देख लोगे along with the test series and the programs like advanced enrichment program which will come after the prelims, you'll be able to get very good control over history, और फिर अच्छे मार्क्स 100% आएंगे. बस इम्बाइब करना ज़रूरी है. जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बहुत सारे, उनको इम्बाइब करना ज़रूरी है. क्या इंट्रोडक्शन होगा, क्या कंक्लूजन होगा, क्या स्ट्रक्चरिंग होगी, क्या डायरेक्टिव होगा, क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर. इफ़ यू आर एबल टू डू दिस मच, गुड इनफ. दिस इज़ समथिंग यू शुड लुक आफ्टर. And I hope we were able to give you a kind of basic understanding of answer writing. For future references will always be available. तो आप कभी भी आपको दिक्कत होती है, you can just come for a 1-to-1 session, offline online दोनों मोड में available है. And make sure you do your level best, and I hope all of you succeed within next few years. All the very best. Hi, welcome to Prep Career IAS. Today I am here with a very important announcement. We are starting a brand new batch of History Optional Foundation. So if you are somebody who is looking for history as an optional, तो थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हिस्ट्री से फ़ायदा क्या होता है, कितने मार्क्स आते हैं, टॉपर्स कितने निकलते हैं. एंड देन इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, देन यू कैन जॉइन आवर इंस्टीट्यूट. चलिए बात करते हैं. सो द प्रोग्राम विल स्टार्ट फ्रॉम 23rd of July. If you see from last few years, okay, हर साल टॉपर्स के 300 या उसके आसपास मार्क्स रहे हैं. In 2018 I was able to get 324 marks, and with the period of time we have produced large number of toppers. अगर आप देखोगे 17 में 316, 18, 19, 20, 21 as well as 22. Every year people are getting around 300 or more than 300 marks. उसके आसपास आ ही जाता है. In fact, the topper of 2023, she also got more than 300 marks. So it's a specific optional where you get good marks. प्लस व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल. देखो आपके जीएस में बहुत हेल्प करता है. प्रीलिम्स में कभी 10 से 20 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं, तो 20 से लेकर 40 मार्क्स तक मैक्सिमम आपका यहाँ से हो सकता है डायरेक्टली. GS1 में 100 मार्क्स के आसपास, GS2 में 50 एंड GS3 में 25 मार्क. लैंड रिफॉर्म्स वगैरह वाले जितने भी टॉपिक्स हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के, वो सारे हिस्ट्री ऑप्शनल से ही डायरेक्टली लिंक्ड है. सो इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर अ स्ट्रेटेजिक ऑप्शनल जो थोड़ा सेफ भी रहे और जिसमें मार्क्स भी एक अच्छे लेवल तक आ जाए पढ़ाई करके, तो हिस्ट्री इज़ अ वेरी गुड ऑप्शनल. With respect to our classes, okay, if you see our methodology is a bit unique. What do we focus upon?
फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव सम स्पेसिफिक क्लासेस विच आर कंसेप्ट ओरिएंटेड, कि भाई आप बेसिक चीज़ें समझो। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, जैसे मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, सो यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ हैंड होल्डिंग इन द बिगनिंग। तो वो हम सबसे स्टार्ट में आपको कुछ बेसिक NCERT क्लासेस देंगे। Then we'll go towards the core classes. These core classes are going to focus specifically on the topics of the history optional, and जो जितने भी topics हैं सब के ऊपर आपको अच्छे notes मिलेंगे, and side by side our classes are going to incorporate all the PYQs. जितने भी PYQs हैं सबको incorporate कर लेंगे। आपका एक अच्छा डेडिकेटेड रिवीजन टाइम मिलेगा शेड्यूल के साथ में। कंटिन्यूस असेसमेंट भी की जाती है कि हर 14 दिन के अंदर आपको एक टेस्ट देना है। इफ़ यू आर एबल टू गेट गुड मार्क्स इन द टेस्ट, इफ़ यू आर एबल टू डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपका अच्छे मार्क्स UPSC में भी आ जाएंगे। बट फॉर दैट यू हैव टू बी रेगुलर, एंड वो अच्छी हैबिट इनकलकेट करने के लिए हमने ये स्पेसिफिक प्रोसेस बनाया। एंड फाइनली होलिस्टिक मेंटरशिप, नॉट जस्ट फॉर ऑप्शनल, फॉर ऑल द पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज ऑल्सो। एनी काइंड ऑफ डाउट यू हैव विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर, हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स, हाउ टू क्लियर मेन्स, हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स in the interview, all those things we focus on at Prep Career IAS. So once you are becoming part of this foundation course, it's not just about optional, it's also about your overall rank in the specific civil services itself. तो सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। देन अगर क्वांटिटेटिवली बात करोगे तो लगभग 150 प्लस सेशंस में आते हैं, 90 प्लस हमारी कोर कंसेप्ट क्लासेस रहती हैं, 40 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन में आते हैं क्लास के अंदर, एंड फाइनली जो आपको कुछ वैल्यू एडेड डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं टू मेक यू एट ईज विद द हिस्ट्री ऑप्शनल। क्यों? बिकॉज देखो कभी क्या होता है कि प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन दे दिया आपको, ठीक है, साइड बाय साइड इंपॉर्टेंट मैप की जो साइट्स वगैरह उनकी कंपाइलेशन दे, तो ऐसे करके जितना भी एनालिसिस चाहिए होता है इस ऑप्शनल के लिए, उन सबको हमने डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, सो दैट हुएवर जॉइन्स दिस उनको हम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आपके पास शुरुआत से ही एज रहे, और एज जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। सो दिस इज़ अबाउट द क्वान्टिटेटिव। देन टेस्ट मिल जाते हैं आपको, 14-15 टेस्ट मिल जाते हैं ओवरऑल मिला के। देन वेबिनार्स होंगे मेरे साथ में, क्रिस्प हैंडआउट है, एंड मेंटरशिप सेशन तो साथ में चलते ही रहेंगे। इन 22 वी वर एबल टू गेट अ वेरी गुड रिजल्ट इन हिस्ट्री ऑप्शनल, एंड यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, एंड दिस लेगेसी गोज अ लॉन्ग बैक। 2022 में बहुत अच्छे मार्क्स थे, 21 में इनफैक्ट द रैंक 1 शी वाज फ्रॉम आवर टेस्ट सीरीज। सो इफ़ वी स्टडी वेल, इफ़ वी डेडिकेट आवरसेल्फ टू दिस ऑप्शनल कैन गिव यू वेरी गुड रिवॉर्ड। एंड हमारे साथ प्रिपेयर करोगे तो किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई माई सेल्फ बीन एन ऑफिसर, आई माई सेल्फ बीन एन एस्पिरेंट ऑफ स्टडिंग विद दिस ऑप्शनल, मैंने हर चीज़ देखी है, एंड माई एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 12 years टेल्स मी ओनली वन थिंग, दैट इफ़ यू आर स्ट्रेटेजिक, इफ़ यू आर मेथडोलॉजिकल, एंड इफ़ यू फोकस ऑन द राइट एरियाज, you can get very quick result, but yes, you have to be dedicated from your side. So if you are somebody with energy, somebody with dedication, become a part of this. 23rd जुलाई से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, एंड आपको अच्छे तरीके से मेंटर करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू क्रिएट अ वेरी गुड सिनर्जी बिटवीन अस, एंड आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी विद रिस्पेक्ट टू दिस, मार्कशीट वगैरह भी अगर आप देखोगे तो यू कैन सी इवन माई मार्कशीट, यू कैन सी आई गॉट 324 मार्क्स हियर। You can call on these numbers. These are the numbers through which you can get connected to our counselors. और counselors के through जितने भी queries हैं with respect to this program, you can eventually solve them out. आप offline visit भी कर सकते हैं ORN, उसका भी एड्रेस वगैरह आपको वो सेंड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।